In our previous videos, we have learned about colonialism in Asia and colonialism in Africa. And we have also learned about factors that caused to First World War. Now, friend, today we are going to learn the First World War. So, this topic is given on page number 12 in your book. So, friend, you can see here the textbook page. So, we will start this topic. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. That means in the First World War, there are 24 nations which supported to the Allied nations and 4 nations supported to the Axis nations. Initially, Germany made noteworthy victories in Europe. It ruined the French army. So, in the beginning, Germany had got noteworthy victories in Europe and it had ruined to the French army. यानी कि शुरुआती दौर में जर्मनी ने यूरोप में बहुत सारी जो विक्ट्री थी वो विक्ट्री से हासिल की थी और उन्होंने फ्रेंच आर्मी को भी रूइन कर दिया था. It fought many submarine wars and destroyed the ships of the allied nations. Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. That means, friends, Germany had fought many submarine wars as well as they had destroyed some ships of the allied nations, and that's why many soldiers and civilians were died due to tank accidents as well as poisonous gases. In 1917, the Russian Revolution started, so Russia withdrew from the war. यानी कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और इसलिए रशिया ने इस वॉर में से अपने आप को खुद से अलग कर दिया था. Germany was very strong at this time. It managed to drown an American steamer, Lusitania, in which 147 American soldiers died. So at that time, Germany was a very strong country and they were very strong, and that's why they were successfully brought or drawn to American steamer Lusitania, where 147 American soldiers died due to this accident. Consequently, America joined the Allied nations for the war in April 1970 और उसके कारण अमेरिका को अप्रैल 1917 में ये वॉर में ज्वाइन होना पड़ा और उन्होंने अलाइड नेशंस जो थे तो अलाइड नेशंस का साथ दिया था. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China and Siam joined the Allied nations और उसी वक्त पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सीएम जो थे तो उन्होंने अलाइड नेशंस का भी साथ दिया. Thus, the Allied nations became stronger. German army could not withstand the American troops और इस तरह से Allied nations का जो ग्रुप था वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने लगा था और उसके कारण जो जर्मनी की जो आर्मी थी वो जर्मनी की आर्मी अमेरिकन ट्रूप्स के सामने यानी कि अमेरिकन की जो आर्मी थी वो उनके सामने वो ठीक से अब नहीं खड़ी हो पा रही थी या उनका जो इस कंपटीशन में वो ठीक से उनको ज़्यादा हार या फिर ज़्यादा उनको चैलेंज नहीं दे पा रही थी. द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज. बल्कि इन सितंबर 1918, तुर्की and Austria in October 1918 joined the Allied nations. So here whole position was completely changed and that's why Bulgaria in September 1918 and Turkey and Austria in October 1918 they had joined in the Allied nations. तो यानी कि बल्गेरिया ने और तुर्की और ऑस्ट्रिया ने अलाइड नेशंस का साथ लिया था. द जर्मन लीडर केजर abdicated his position and run away. यानी कि जर्मनी के जो लीडर थे वो जर्मन लीडर केजर ने अपनी जो पोजीशन में उन्होंने लीव कर दी थी यानी उन्हें छोड़ दिए थे और वो वहाँ से भाग गए थे. Germany surrendered to allied nations and signed a ceasefire treaty and the war came to an end.
and finally Germany had to surrender to allied nations and they had to sign for ceasefire treaty. And in this way, the First World War was came to end and इस तरह से जर्मनी के सरेंडर से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड आया था या हुआ था. Now, friend, we will see here effects of First World War, immediate effects. So, due to First World War, there were lots of effects. So, these effects are given here. So, first number is destruction of man and material. Approximately 6.5 crore people took part in the war. At least 1 crore died, about 2 crore were injured, and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. That means, friends, 6.5 crore people took part in the First World War, and around 1 crore people were died, 2 crore people were injured, and 70 lakhs people were permanently handicapped. More number of people died because of starvation and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. यानी कि उससे भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी वो स्टारवेशन के कारण, और कई ऐसे भी थे कि जिसका मर्डर भी हो गया था. कई ऐसे भी थे कि जो एपिडेमिक्स के कारण, यानी कि उस वक्त जो पैंडेमिक्स फैल गया था, एपिडेमिक्स फैल गया था, तो उसके कारण भी कई लोगों की हार हुई थी. द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वेट हाई, यानी कि जो टोटल वॉर का जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो बहुत ही हाई था, यानी बहुत ही ऊंचा था. नाउ फ्रेंड, यू कैन सी हियर सेकंड इफेक्ट, सोशल चेंज. ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द men of all nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation. So during the war, maximum men in the world were engaged in the war, and that's why the family's responsibility was handed over to women. यानी कि उस वक्त दुनिया के सभी जो मैन थे वो मैन, ज़्यादातर लोग वो वॉर में एंगेज हुए थे, और उसके कारण फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर जो ऑक्यूपेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो वीमेन के शोल्डर के ऊपर आ चुकी थी. यानी कि वीमेन को ही अब अपनी फैमिली को सर्वाइव करना था. They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional fields. That means, friends, उन्होंने सक्सेसफुली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया था, और जो भी उन्होंने फील्ड पसंद किया था या जो भी उन्होंने प्रोफेशन पसंद किया था तो उसमें वो लोग अच्छी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन या अपनी फैमिली जो थी वो फैमिली को वो सर्वाइव करते थे. The self-confidence of their being equivalent to men enhanced. यानी कि उस वक्त जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा था तो वो मैन के कंपेयर में वो बहुत ही अच्छा था. Consequently, the demand for women to exercise their franchises was raised, और उसके कारण जो women की जो डिमांड जो थी तो वो डिमांड बढ़ चुकी थी कि अलग अलग जो फील्ड थी वो अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए. During the war, the production of things of basic necessity had reduced. That means during the war, the basic necessities things were, the production was completely reduced. यानी कि उस वक्त जो बेसिक नेसेसिटीज की जो भी चीज़ थी तो उसकी जो डिमांड है वो डिमांड जो थी वो डिमांड को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था. So problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. raise their heads, and due to the production of basic necessities were reduced, problems were arise like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. यानी कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज की जो भी चीज़ थी वो चीज़ की प्रोडक्शन कम होने के कारण कई प्रॉब्लम हर एक कंट्री को फेस करने पड़े थे. और वो प्रॉब्लम कौन सी थी तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे दिए गए है. स्कैर्सिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स है, लॉकआउट्स है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई थी.
पीपल सफर अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक, यानी कि पीपल की जो कंडीशन थी वो पीपल की कंडीशन और चिल्ड्रन की जो कंडीशन थी वो उनकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो गई थी, यानी कि बहुत ही एक क्रिटिकल कंडीशन उस वक्त क्रिएट हो चुकी थी। Now friend, we will see here third number, the Treaty of Versailles, June 1990. At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nations brought an end to the war. Then the Allied nations undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. So at the end of the First World War, Germany had to surrender to Allied nations, and that's why Allied nations undertook some peace process in Paris. And according to this peace process, 58 commissions were formed and 145 sessions were organized to make a peace in the world. The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace at Versailles. यानी कि जो एग्रीमेंट जर्मनी के साथ हुआ था वो पेरिस पीस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, और वो कहाँ पे हुआ था, तो वो जो मिरर पैलेस है वर्सेल्स में, तो वहाँ पे हुआ था। Thus, it came to be known as the Versailles Treaty, और इस तरह से ये पैलेस की ये जो जगह है वो जगह के नाम से ये जो ट्रीटी है वो ट्रीटी का नाम भी रखा गया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स या वर्सेल्स ट्रीटी। There were four provisions in the Treaty of Versailles. First number, regional arrangement, reduction in troops and disarmament, the arrangement of distribution of gains at the end of the war and war fine, and fourth number, other provisions. So that means friend, these are four main provisions which are considered or which were taken in Treaty of Versailles. यानी कि ये जो फॉर मेजर प्रोविजंस थे कि जो वर्सेल्स की ट्रीटी में कंसिडर किए गए थे या फिर डिसाइड किए गए थे, और वो फॉर जो प्रोविजंस थे वो प्रोविजंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑर्लैंडो played an important role in this treaty. So friends, this is the most important sentence. Make bracket for this sentence. The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, French President Clemenceau, and Italian President Orlando. So they have played a major role for this treaty. Germany was found responsible for the war. A war fine of 6.5 billion pounds was imposed on Germany. So Germany was found guilty for this First World War, and that's why Germany had to pay 6.5 billion pounds to the other nations. It had to give away the Ruhr region to France. Its Rhine river had to be open for international sealing. यानी कि ये जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी के मुताबिक उनकी जो रूहर रीजन है वो फ्रांस को दे देने पड़ा था, और जो राइन रिवर है वो राइन रिवर को भी उनको इंटरनेशनल सी रूट में उसको तब्दील किया गया था, यानी कि उनको खोल दिया गया था। The Rhineland region on French border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral region was given away to France for 15 years. यानी कि जो राइनलैंड के जो रीजन थे जो फ्रेंच बॉर्डर के एकदम नजीक था, तो उनको क्या करना पड़ा था कि 15 इयर्स तक फ्रेंच को उनको हैंड ओवर करना पड़ा था। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कन्फिस्केटेड, यानी कि उस वक्त जर्मनी के जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो जर्मनी के ऑर्गेनाइजेशंस को कन्फिस्केटेड कर दिया गया था। अल्सस एंड लॉरेन वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस, और जो अल्सस और लॉरेन जो प्रोविंसेस थे वो फ्रांस को रिटर्न करने पड़े थे। Besides this, Germany was to give to France and other allied nations
a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war। यानी कि उस वक्त जर्मनी के जो जर्मनी और जर्मनी को फ्रांस और अलाइड नेशंस जो थे, तो उनको जो कॉल थे या फिर जो आयरन थे वो उनको एक्सपोर्ट करने पड़े थे, और वो भी बिना कोई किसी भी कीमत के। और इस तरह से जो एनुअली जो जो वॉर था वो वॉर को उनको जो फाइन था वो फाइन में उन्होंने तब्दील कर दिया था। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशंस on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and desperation amongst Germans। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे जर्मनी को ये सब जो साइन करवाई थी, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने उनके पास से साइन करवाई थी, तो वो उनको फोर्सिबली यानी कि उनको फोर्सफुल से ये साइन करवाई थी, और उसके कारण जर्मनी में या जर्मन पीपल में एक बिटरनेस की जो कंडीशन है, एक फीलिंग है, तो वो फीलिंग क्रिएट हुई थी। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेल मिजरेबली, और उसके कारण जो जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली फेल हो चुकी थी। नाउ फ्रेंड वी विल सी हियर फोर्थ नंबर इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। There was a feeling of revenge in signing the treaty with the nations that were defeated in the war। यानी कि उस वक्त हर एक जो कंट्री थी जो हारी हुई थी और उनको जो ट्रीटी में साइन करनी पड़ी थी, तो वो उनके मन में, उनके हार्ट में एक रिवेंज की जो फीलिंग थी वो फीलिंग अब क्रिएट हो चुकी थी, यानी कि वो ओरिजिनेट होती थी। पीस could not be established with the treaty। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। यानी कि ये ट्रीटी ऐसे सोच समझ कर की गई थी कि इस ट्रीटी के बाद वर्ल्ड में एक पीस की कंडीशन क्रिएट होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। सोशलिस्ट रशिया जो थे तो उसको लीग ऑफ नेशंस में स्थान दिया गया नहीं था, यानी कि उनको जगह ही नहीं मिली थी। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशंस, दैट्स व्हाई it can be said that the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War was itself। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो सीड्स हुए थे या फिर जो शुरुआत वो हुई थी, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पीस प्रोसेस के कारण हुई थी। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस प्रोसेस हुई थी, तो उसके कारण ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने जा रही थी। तो यानी कि ये भी एक उसका रीजन बन चुका था। नाउ फ्रेंड वी विल सी हियर द रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन व्हिच टुक प्लेस इन 1917। सो दिस टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 13। The Russian Revolution 1917 is considered as an important event in world history। The Russians had been oppressed and suppressed by the Tsar of Russia। यानी कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में रशियन रिवॉल्यूशन को एक इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है, और इसलिए कि रशियन पीपल जो थे, तो वो रशियन के पीपल ने रशिया के जो जार थे यानी कि जो किंग थे, तो उनके ऊपर जो अप्रेस और सप्रेस शुरू हो चुका था। द रशियन जर्स हु इनहेरिटेड द पोजीशन वर ऑल डिक्टेटर्स एंड एंजॉयड अनकंट्रोल्ड रूल ओवर पीपल। यानी कि रशियन के जो जार थे, तो उनको जो पोजीशन मिलती थी तो वो इनहेरिटेड थी, यानी कि उनको अपने जो वारसागत उनको ये पोजीशन मिलने लगी थी, और उसके कारण उनका जो बिहेव था वो बिहेव ज़्यादा खतरनाक हो गया था। यानी कि वो एक डिक्टेटर्स की तरह वो बिहेव करने लगे थे, और जो भी उनको रूल करने के लिए अथॉरिटी मिलती थी, तो उनके कारण वो लोग अनकंट्रोल हो चुके थे। पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। द चार्ल्स वर सो क्रूअल एंड pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed, and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia। यानी कि उस वक्त कोई भी पीपल अपने राइट्स की डिमांड नहीं कर सकते थे, और अगर किसी ने ऐसा डिमांड रखा है जार के सामने, तो उनको ज़्यादातर टॉर्चर किया जाता था, उनको पनिशमेंट दी जाती थी, या फिर उनको जो साइबेरिया है, तो साइबेरिया की जो
जो मॉन चिलिंग जो ठंड है तो वहाँ पे उनको भेज दिया जाता था, यानी कि वहाँ पे इस तरह से उनको जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट दी जाती थी। This uncontrolled and oppressive Jhardam became the reason for grief, poverty and suffering among people। यानी कि इस तरह से जो जर्डम शुरू हुआ था और जर्डम के कारण जो पीपल की जो कंडीशन हुई थी वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन हुई थी। पोवर्टी जो थी तो पोवर्टी भी ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग अपने आप को जो जो भी राइट्स मिलने लगे थे या फिर मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिलते थे और उसके कारण उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब जो जो जार है वो जार का अपोज करें। The Russian farmers, laborers and peasants were not getting enough income despite working very hard. They became very poor। यानी कि रशिया के जो फार्मर्स थे, लेबर्स थे, पीजन्स थे, उनको सफिशिएंट इनकम नहीं मिलती थी और उनके कारण उनका जो जीना था वो बहुत ही कठिन हो चुका था और उसके कारण वो दिन ब दिन वो पुअर यानी कि गरीब बनने लगे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर कैपन, a large rally was taken out to the Tsar's residence, Winter Palace, 22nd January 1905, Sunday। यानी कि फादर कैपन की लीडरशिप के नीचे एक बहुत ही बड़ी जो रैली थी वो रैली निकली थी और वो जारकी जो पैलेस थे तो वो जारकी पैलेस के आगे जाना था और वो पैलेस का नाम विंटर पैलेस था और वो डेट थी 22 जनवरी 1905 और जो डे था तो वो संडे का दिन था। These people were unarmed while some had the Tsar's picture in hand with captions like a long life the little white lord of Russia written on it। यानी कि सभी लोगों के पास बिना हथियार लिए वो गए थे, यानी कि उनके पास कोई भी ऐसे हथियार नहीं थे या वेपन नहीं थे। उनके पास था तो सिर्फ पिक्चर थे, वो पिक्चर्स के ऊपर कैप्शंस लिखे थे, लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया। द Tsar's army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and the snow in Petersburg, where the Tsar's palace was situated, turned red with blood। यानी कि उस वक्त जार ने ओपन फायर का ऑर्डर दिया था और ये ओपन फायर के ऑर्डर के कारण थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल की उसमें डेथ हो गई थी और उनकी जो डेथ होने के कारण पीटर्सबर्ग पे जो स्नो था वो स्नो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया था। यानी कि वो जो पूरा एरिया है तो वो पूरा एरिया जो स्नो जो था तो वो स्नो अब रेड कलर से वो पूरा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया था। दिस डे इज नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री और हिस्ट्री में ये ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। Around this time, a large number of Russians got provoked and became restless as the weakness of the Tsardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan War in 1905-05। यानी कि उस वक्त ही रशिया जो थी तो वो रशिया के लोगों में ही एक प्रोवोक यानी कि एक उसमें उन्होंने ये जान लिया था कि अब जो जार्डम है वो जार्डम अब वीक हो रहा है। ऐसा उन्होंने कैसे पता चला कि उस वक्त जो जापान एक छोटा सा कंट्री है, जापान ने रशिया को हरा दिया था। तो उसके कारण जो रशियन पीपल थे तो रशियन पीपल में भी एक तरह से इंकरेजमेंट मिल गई थी कि रशिया के जो जार है तो वो जार के सामने हमें कैसे लड़ना है। In order to pacify the angry Russians, an announcement to call for a Duma legislative assembly, which had not been called for years, was made। और उसी वक्त रशियन के जो लोग थे तो वो रशियन के लोग उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो डूमा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो वो अनाउंस करें, जो बहुत सालों तक नहीं हुई थी और उस वक्त ये शुरू हुआ था। यानी कि डूमा को ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी तो उसको अब बुलाना जरूरी हो गया था। इवेंचुअली फॉर सच डूमा वर कॉल्ड और इवेंचुअली ऐसे फॉर डूमा जो थी तो उसको
बुलाया गया था, बट बिफोर इट कैन टेक स्टेप्स टू सेटिस्फाई द सिटीजन्स इट हैड बीन कॉल्ड, यानी कि सिटीजन्स इस स्टेप से सेटिस्फाई नहीं थे और उसके कारण ये जो इवेंट थी या फिर ये जो ऑर्गेनाइज किया था तो उसको कॉल अप कर दिया गया था, यानी कि उसको इतना रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिला था। On the 8th March 1917, the English workers of Petrograd called for a strike. The Tsar sent his troops to contain this event. यानी कि उस वक्त जो वर्कर्स थे तो वो वर्कर्स ने स्ट्राइक रख दी थी और इसके कारण जार ने अपनी जो आर्मी है वो आर्मी को वहां पे भेजा था, बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल एज ए रिजल्ट द रिवोल्यूशन बिगेन। तो यहाँ पे जो आर्मी भेजी गई थी इनोसेंट पीपल को शूट करने के लिए, तो वो आर्मी ने यहाँ पे उनके ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया और इस तरह से ये जो रिवोल्यूशन थी वो रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। आफ्टर द फॉल ऑफ द ज़ारडम the power fell into the hands of Karnatski leader of Menshevik, यानी कि ज़ारडम फिनिश होने के बाद मेंशेविक ग्रुप के जो लीडर थे कार्नेस्की, तो उनको ये पूरा पावर, ये पूरा कंट्रोल हैंड ओवर कर दिया गया। Except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of the Tsar. So Lenin was not happy at that time. But Lenin believed in the importance of the labors as propagated by Karl Marx. That means, friend, here Lenin was support to Karl Marx principle to labors, यानी कि लेनिन जो थे वो लेनिन कार्ल मार्क्स के जो प्रिंसिपल थे, यानी कि जो लेबर्स को सपोर्ट करने के प्रिंसिपल थे तो उनके फेवर में थे। While the Menshevik group believes in the importance of the middle class, यानी कि मेंशेविक ग्रुप जो थे तो वो मिडिल क्लास के सपोर्ट में लगे हुए थे। As a result, Lenin instigated the Bolsheviks against Mensheviks and in November 1917 declared the final revolution and got the reign in his hands। और उसके कारण 1917 नवंबर में बोल्शेविक और मेंशेविक जो दोनों ग्रुप थे तो दोनों ग्रुप में एक रिवोल्यूशन हुआ था और इस रिवोल्यूशन में जो लेनिन है वो लेनिन के हाथ में ये जो अथॉरिटी है वो आई। दिस केम टू बी नोन एज द सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवोल्यूशन और बाद में इस सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवोल्यूशन के नाम से जानी गई। Thus, the 300 years old Tsardom came to an end and for the first time Russia was without a Tsar। और इस तरह से जो 300 years से जो Tsardom रशिया में फैल चुका था उसका अब एंड आया था और रशिया अब पहली बार ऐसा हुआ था कि जहाँ पे जार की अथॉरिटी नहीं थी। Now friend, we will see here efforts for world peace. The League of Nations. The horrors of the World War explain the absolute necessity of world peace to the nations of the world. So, if we say, friends, the horrors of the world, it explains the absolute necessity of the world peace। यानी कि अगर हम वर्ल्ड वॉर के ये जो हॉरर्स देखे या फिर उनकी जो रिजल्ट देखे तो हमें ये बात पता चलती है कि उस वक्त वर्ल्ड पीस जो है तो वर्ल्ड पीस की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि दुनिया की हर एक कंट्री में वर्ल्ड पीस का इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस वक्त जो कंडीशन थी पूरे वर्ल्ड की वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन थी। एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन was felt, so it became necessary to think actively and immediately about world peace, and that's why there is the most requirement thing was the international organization which established peace in the world। यानी कि उस वक्त एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी कि जो वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश कर सके और वो भी इस तरह से कि जो वर्ल्ड पीस है वो वर्ल्ड पीस से एस्टेब्लिश करने में सब लोग एक्टिवली वो वर्क करें। The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of the League of Nations। So friends, this is the most important point। American President Woodrow Wilson had contributed actively to establish League of Nations। The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris Peace process on
10th January 1920. द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म, यानी कि वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स जो सजेस्ट किए थे पेरिस पीस प्रोसेस में 10th जनवरी 1920 को, और इस तरह से लीग ऑफ नेशन से वो फॉर्म हुआ था। नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी हियर which aims were put in the League of Nations. So first number is given here, to maintain international peace and security, यानी कि कुछ भी करके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें। सेकंड नंबर, एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन, यानी कि हर एक नेशंस को यूनिटी और इंटीग्रिटी दूसरी कंट्री के साथ बना के रखना है और उनको रिस्पेक्ट भी देना है। थर्ड नंबर, टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी कि वॉर की जो पॉलिसी है तो उसको छोड़ देना है। फोर्थ नंबर, टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि सभी कंट्री के साथ एक इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो इंटरनेशनल रिलेशन वो डेवलप करने हैं। फिफ्थ नंबर, to solve international disputes peacefully through negotiation और mediation, यानी कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको पीसफुली या नेगोशिएशन के साथ या मीडिएशन के साथ वो उसको सॉल्व करना है, यानी कि उसको दूर करना है। सिक्स नंबर, इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस और इट्स मीडिएशंस इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज ए रिबेल नेशन, यानी कि कोई भी कंट्री अगर ये लीग ऑफ नेशंस को या ये मीडिएशंस को निगलेक्ट करते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं तो उसको एक रिबेल की तरह देखा जाएगा। द लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द सुपर पावर्स एंड इन 1939 द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगेन, यानी कि लीग ऑफ नेशंस जो वर्ल्ड पीस के लिए एस्टेब्लिश किया था तो वो ठीक से अपना काम नहीं हो पाया था और उसके कारण उनका जो कंट्रोल होना था वो कंट्रोल ठीक से वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो सुपर पावर थी वो सुपर पावर कंट्री उसमें जो उनकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हुई थी और उसके कारण 1939 में ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है तो वो शुरू हुआ था। तो इसके कारण ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुआ था। सो फ्रेंड, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट नंबर 2. So, thank you.